Very good morning to you all kids. As you all know that the exams are approaching, so you have already read all the chapters till 5, okay? Chapter 1 to 5 is done. Chapter 1 and 2 you have given the tests also, the first and the second test. But now this time all the chapters are coming, so you need to revise them. First two chapters are already revised because you have given the exams also. Now in the coming these 2 days, the two videos are only the revision of the main points which are there in the chapter. We have already sent the detailed things. आपके पास सारा मटेरियल है, आपके पास वीडियोस हैं, तो आप उसे बार बार देखिए और चैप्टर के साथ पढ़ते भी रहिए. Do the back exercises, underline the important dates, the main points. As you all know that you have to read everything in the chapter, not only the back exercises. So we are only going to deal with the main points, what is there in the chapter. Okay, in detail you have learned everything. So it's about the Delhi Sultanate, and the timing is around the 1192 when Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori, okay, Muhammad of Ghor, and he had to leave to protect the western boundaries of his empire. So Muhammad Ghori left and he appointed Qutbuddin Aibak as a regional general of northern India. And when Muhammad Ghori left and he died, Aibak proclaimed himself as the Sultan in 1206. Okay, and Aibak was there who set up the dynasty, the slave dynasty. This period in the history is also known as the Sultanate period. Okay, because after that, when the Aibak established the slave dynasty, so many other dynasties also followed it of the Turco-Afghan descents, okay, till 1526 when the Mughals were there. Okay, so in Qutbuddin Aibak, he was a Turkish slave, and he founded the slave dynasty. His successors were called the Mamluks, which also means the slave or the son of a slave. उनके जो फाउंडर थे, जो सक्सेसर्स उनके हुए, उन्हें इसी नाम से जाना जाता था. एंड आफ्टर द टाइम ऑफ Qutbuddin Aibak was complete, Aibak was succeeded by his most favorite slave, and he was also his son-in-law, and he was Iltutmish. Okay, he was succeeded by his son-in-law Iltutmish, and he can also be called the true architect of the Delhi Sultanate, क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए and undertook so many measures to strengthen his empire. उसने बहुत कुछ किया जिससे कि empire को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता था, slave dynasty को और भी ज़्यादा strengthen किया गया. Like he consolidated the empire by organizing the nobility into a select group of 40 लोगों का उन्होंने एक अपना, कहते हैं एक तरह की कैबिनेट उसने अपनी तैयार की और उसी से वो सारे काम करता था. एंड ही ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग, ही ट्राइड टू डू एवरीथिंग वेरी सिस्टमेटिकली. ओके, देन ही ऑर्गेनाइज द आर्मी इन अ प्रॉपर डिविजन्स. आर्मी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी, उसको ऑर्गेनाइज करने का भी काम इल्तुतमिश ने ही किया. देन ही डिवाइडेड द सल्तनत इनटू स्मॉल एंड लार्ज ट्रैक्ट्स कॉल्ड द इक्ताज. ओके, और जहाँ जो कि नोबेल्स को या ऑफिसर्स को दिए गए थे इंस्टेड ऑफ द कैश और सैलरीज. वो अपने सर्विसेज देते थे, वो अपना काम करते थे और बदले में उन्हें कैश या काइंड किसी भी तरह से सैलरीज मिलती थी. देन ही स्ट्रेंथेंड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल अटैक्स. मंगोलियंस का भी उस समय बहुत ज़्यादा अटैक था, तो उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया. देन ही अटेम्प्टेड टू सप्रेस द इंटरनल रिवोल्ट्स ऑल्सो, जो पंजाब, सिंध, बंगाल और बिहार में इंटरनल रिवोल्ट्स हो रहे थे, उसको भी उसने बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की. एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स. ठीक है, सिल्वर कॉइन्स जो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए, देर वर कॉल्ड द टकाज. एंड द कॉपर कॉइन्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड वर कॉल्ड द जीतल्स. ओके, silver coins and copper coins were introduced by him only. Then Iltutmish, the very another and unusual thing related with his decisions was that he chose his daughter
रजिया एज इज सक्सेसर। उसको लगा कि उसके जितने भी बेटे हैं वो कैपेबल नहीं है कि वो इस तरह से रूल कर सकें जिस तरह से उसने अभी तक रूल किया था, या उसके एम्पायर को संभाल सकें। सो ही चोज हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर। लेकिन ये बात जो थी वो बहुत सारे लोगों को, जो नोबेल्स थे, जो खलीफा उलेमा लोग थे और जो लोग काम करते थे उनके दरबार में, इल्तुतमिश के बहुत ही क्लोज लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि रजिया वॉज अ वेरी ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड जस्ट रूलर, शी वॉज अ वेरी गुड वन। लेकिन उसके बाद भी एक विमेन का रूलर होना उन लोगों को सही नहीं लग रहा था। एंड ऑल द टाइम दे वर जस्ट कंस्पायरिंग, उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज करते रहते थे। एंड दे कंस्पायर्ड ऑल्सो टू डिथ्रोन हर, और फाइनली शी वॉज किल्ड इन 1240। ओके, देन in 1265 एक टर्किश स्लेव, he was called Balban, who had become a leading member of the nobility, जो कि रजिया के जाने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा वीकेंड होती चली गई थी। ही टुक ओवर एज सुल्तान। ओके, और उसने भी बहुत सारे मेजर्स किए, बहुत सारे स्टेप्स उठाए जिससे कि एम्पायर को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। फर्स्ट ही डिफीटेड द लोकल रूलर्स, जो लोकल रूलर्स वहाँ थे जो अगेंस्ट उठ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, हु आर रिवोल्टिंग अ बिट, तो उन लोगों को सप्रेस करने का काम किया। देन ही डिफीटेड हिज किंगडम फ्रॉम मंगोल इन्वेजन्स, बहुत ज़्यादा डिफेंड किया और उन्होंने मंगोल इन्वेजन्स को भी बचाया। ही इस्टेब्लिश एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, जासूस और जो खबरी होते थे उस वक्त, जो सभी जगह से खबरें ला करके पहुंचाते थे और बताते थे, सो वो एक पूरा सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया बलबन ने। एंड ही रिस्टोर्ड लॉ एंड ऑर्डर इन द गंगा यमुना वैली, जो लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, दैट इज़ द गंगा यमुना दोआब भी उसे कहते हैं। सो ये जो चीज़ें थी, ये मेजर्स उसने उठाए बलबन ने। देन बलबन कंसोलिडेटेड द तुर्किश रूल इन इंडिया, और इवेंचुअली उसके जो ग्रैंडसन थे एंड द सक्सेसर, ही वॉज मर्डर्ड बाय जलाउद्दीन खिलजी। ओके, एंड देन खिलजी सीज द थ्रोन एंड एस्टैब्लिश द खिलजी डायनेस्टी। ओके, हियर यू कैन सी Balban's grandson and successor was murdered by Jalaluddin Khilji, and then he seized the throne and established the Khilji dynasty. Jalaluddin Khilji ascended the throne when he was very old, and उसके बाद उसके nephew अलाउद्दीन खिलजी ने उनका मर्डर कर दिया था, and in 1296 and Alauddin Khilji became the next ruler also. Okay, Alauddin Khilji murdered Jalaluddin Khilji and then ascended the throne in 1296 और वो next सुल्तान बन गए थे। Alauddin Khilji did so many things for the expansion of the empire, and he wanted to conquer the world. वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, अपना एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहता था, and he sometimes called himself the second Alexander or the Sikandar Sani. He was best known for so many things like tackling the Mongol menace, taking the measures to prevent rebellions, जो भी इंटरमिक्सिंग ऑफ नोबेल्स हो रहा था उन प्रॉब्लम्स को उसने सॉर्ट आउट किया। देन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड, अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, देन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, मालवा, राजस्थान, देवगिरी, ये सारी चीज़ें उसने कंट्रोल की थी। देन ही इंट्रोड्यूस्ड हुलिया इन द आर्मी whereby a description of each soldier was recorded. Okay, or then the cavalry also used the tag system. Tag means the branding of the horses with the royal insignia. वहाँ उसमें जो रॉयल हॉर्सेस होते थे उन्हें एक तरह से वहाँ स्टैम्प किया जाता था। Then he organized the efficient spy system. स्पाई सिस्टम को भी उसने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया। देन आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट, कि कौन थ्रोन पे बैठेगा, कौन नेक्स्ट रूलर बनेगा, ये एक तरह का बहुत बड़ा वॉर होने लगा, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था लोगों के बीच। देन द पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक। ओके, और उसके बाद पावर किसके हाथ में आया? इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक, एंड देन ही फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। ओके,
Ghiyasuddin Tughlaq was also nicknamed as the Ghazi Malik. Okay, Ghiyasuddin Tughlaq का क्या निकनेम था? गाजी मलिक. एंड ही केम टू पावर इन 1320. और कैसे वो थ्रोन पे आए? आफ्टर किलिंग द लास्ट खिलजी रूलर द खुसरो खान. ओके, ही किल्ड द लास्ट खिलजी रूलर. एंड then after that Janwa Khan succeeded his father Muhammad bin Tughlaq under the title of Muhammad bin Tughlaq. Janwa Khan is also named as the Muhammad bin Tughlaq and he succeeded his father. और बहुत सारे जो उसके शासनकाल के बारे में आपको इंफॉर्मेशंस मिलेंगे. दे आर फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द जियाउद्दीन बर्नी, जो कि मोरक्कन ट्रैवलर था. एंड ही हैज़ रिटन दैट biography about the Tughlaq dynasty and the rulers of that time. Muhammad bin Tughlaq undertook several ambitious projects. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे काम करने की कोशिश की उसने. एंड जो कंट्रोवर्शियल भी होते चले गए, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किए. कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे और कुछ में वो अनपॉपुलर भी हुआ और उसे फेलियर भी मिला. सो यू हैव टू गो थ्रू दीज ऑल द conspiracies and what the controversial acts, what the controversial decisions he had taken. ये सब कुछ आपको बुक में डिटेल मिल जाएगा. You can see the page number 27, Muhammad bin Tughlaq's controversial projects. So that's written over here. जो projects हैं वो एक साइड लिखे हुए हैं and the reasons for the failure, कि क्यों वो projects उसके fail हो गए. So you go through it and learn it. Okay. Then Muhammad bin Tughlaq जो था, he undertook so many expeditions also to conquer the Khurasan and Karchil, to meet with disastrous consequences. उसके जो results थे वो बहुत ज़्यादा सही नहीं आए थे. Okay. And then Firoz Muhammad bin Tughlaq was succeeded by his cousin Firoz Tughlaq. Okay, Firoz Tughlaq was his cousin जिसने उसको सक्सीड किया था. उसके बाद ही वॉज नॉमिनेटेड बाय द उलेमास एंड द नोबल्स एज द नेक्स्ट रूलर. उसी को नेक्स्ट रूलर या सुल्तान बनाने के लिए जो रूलर्स थे, जो उलेमास थे, उन लोगों ने उसका नाम रिकमेंड किया. एंड ही लैक द टेम्परामेंट एंड करेज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलर. जो फिरोज तुगलक थे उनमें टेम्परामेंट, पेशेंस और एक करेज जो एक स्ट्रॉन्ग रूलर में होना चाहिए, उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी थी. वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की टू पैसिफाई द उलेमास बाय अडॉप्टिंग सो मेनी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़, कि जो नोबल्स हैं, जो उलेमा लोग हैं, वो शांत हो जाएं, उसके हिसाब से रहें, काम करें. पर ऐसा नहीं हो पाया. हालांकि उसने बहुत सारी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया. लाइक ही इम्पोज्ड अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स कॉल्ड द जाजिया कर. दैट वाज अगेन यू विल रीड अबाउट इट एट द टाइम ऑफ अकबर एंड जहांगीर. He allowed a noble's son to succeed to his father's position and Jagir. After the latter's death, the same was done in the army. So इस तरह की जो चीज़ें थी उसने की ताकि लोग उससे खुश हो सकें, पॉपुलर पॉलिसीज़ हो सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. And Firoz Tughlaq undertook numerous measures for the well-being and welfare of the common people. Okay, और काफ़ी सालों बाद तक till he was ruling even during the reign of Nasiruddin Mahmud. ओके, फिरोज के जो सक्सेसर थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे. दे वर इनकॉम्पिटेंट. ओके, फिरोज तुगलक सक्सेसर्स वर इनकॉम्पिटेंट. एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही, जो कि लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, तिमूर, जो कि मंगोल रूलर था ऑफ समरकंद सेंट्रल एशिया, जहाँ से अगेन you will learn something more about it in the coming chapters. So he invaded India so many times in that period in 1398. और जितने भी शहर थे, हमारी मंदिरें थी, हमारे जो लोग थे, जो भी वो पैसा जमा करके रखते थे, या मंदिरों के जो मंदिर लूटने का मतलब क्या? मंदिर लूटने का मतलब ये नहीं कि वो मूर्तियाँ उठा करके लेके जाते थे. नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. वो जो वहाँ खजाना रहता था, जो लोगों का पैसा होता था, जो कई बार वेलफेयर के लिए काम आता था या मंदिर निर्माण के लिए काम लाया जाता था, वो बहुत ज़्यादा होता था. उस समय मंदिरों में, खजानों में बहुत पैसे होते थे, तो वो उन्हें लूटने आया था.
Okay, so he plundered so many towns and cities, and Tughlaq rule जो था that continued till 1414, and the Nasruddin Mahmud was the ruler, the last ruler. Okay, then बहुत सालों के बाद जब तैमूर ने इंडिया छोड़ भी दिया था, he went back, he left his deputy Khizr Khan here. उनका जो representative यहाँ था, who was seeing the work and the plundered things here, वो उसने कैप्चर कर लिया था throne and established the Sayyid dynasty. Okay, Timur's deputy Khizr Khan established the Sayyid dynasty in 1414. और खिज्र खां को बहुत ज़्यादा उसके टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी के लिए भी जाना जाता है. ही वॉज अ वेरी टॉलरेंट वन. एंड देन मुबारक शाह सक्सीडेड हिज फादर खिज्र खां इन 1421. 1441 में खिज्र खां ने सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद 1421 में मुबारक शाह ने सक्सीड किया अपने फादर खिज्र खां को. देन मुबारक शाह वो सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह. और मोहम्मद शाह जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट रूलर नहीं थे. ओके, अपार्ट फ्रॉम द अपराइजिंग्स, द रिवोल्ट्स, और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिनसे वो डील प्रॉपरली नहीं कर पाए. सो देन मोहम्मद शाह वॉज सक्सीडेड बाय द रूलर्स हु वर नॉट वेरी मच कॉम्पिटेंट. ओके, देन इन 1451 द बहलूल लोदी, एन अफगान जो कि गवर्नर था पंजाब का, ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. ओके, और एंड ही सप्रेस्ड ऑल द रिबेलियंस एंड एस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर सिंध एंड मेवाड़. बहलूल लोदी was succeeded by his son Sikandar Lodi in 1489, and then in 1499, and then he was considered Sikandar Lodi. He is considered to be the greatest ruler of the Lodi dynasty. सिकंदर लोदी को सबसे ज़्यादा जस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छा और सही रूलर माना जाता है लोदी डायनेस्टी का, because he did so many work for that. He proved himself to be the greatest one, and he annexed Jaunpur and Bihar, brought the entire region of the Gangetic Plains under his control. Greatest ruler का sense क्या? Here it is not meaning that they were working for the people over here. No, it means that they did so many work for the expansion of their empire. अपने एम्पायर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया और कितने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे. दिस वॉज द पैरामीटर ऑन विच द एफिशिएंसी ऑफ द रूलर वॉज मेजर्ड. ओके, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया, जिसने रिबेलियंस को सप्रेस कर दिया, जो मैटर्स को सॉर्ट आउट करता चला गया, रिवोल्ट्स को दबा दिया, जिसने अपना एम्पायर एक्सपेंशन करता रहा, ही इज़ द रूलर. ओके, दैट वॉज द बेसिक पैरामीटर फॉर बीइंग द रूलर देयर. आपको अगर आप रूलर हैं, यू हैव टू गो थ्रू द एक्सपेंशंस ऑफ द एम्पायर. Then Sikandar Lodi was succeeded by his son Ibrahim Lodi. Okay, सिकंदर लोदी को इब्राहिम लोदी ने सक्सीड किया था. He became the next ruler, and Ibrahim Lodi faced a number of rebellions. Okay, बहुत सारे रिबेलियंस को फेस करना पड़ा था इब्राहिम लोदी को. एंड फाइनली आलम खान, जो कि सुल्तान के अंकल थे, एंड द दौलत खान लोदी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, दे इन्वाइटेड बाबर. ओके, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी जो है वो थ्रोन से हट जाए, तो इन लोगों ने बाबर को इनवाइट किया बाहर से. इन लोगों ने बुलाया कि आप यहाँ आइए और लोदी को हरा दीजिए और उसके बाद हम लोग टेक ओवर कर सकें. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था. बाबर केम एंड ही वॉज हियर टू लेट द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. वो आकर के और इन लोगों को फेवर करने के लिए तो इन लोगों ने बुला लिया कि हम बाहर से हेल्प लेकर के और इब्राहिम लोदी को हरा लेंगे और वी विल नाउ देन रूल द दिल्ली एंड वी विल बी द नेक्स्ट रूलर्स. लेकिन हुआ क्या? दे इनवाइटेड बाबर, द रूलर ऑफ काबुल, टू इन्वेड इंडिया. यहाँ पे हमला करने के लिए बुलाया. एंड देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526. 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर ने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को, एंड ही वॉज किल्ड.
और लेकिन इसके बाद बाबर वापस नहीं लौटा। ऐसा कुछ नहीं था कि वो यहाँ आया था और उसने सबकी हेल्प की और थ्रोन इन लोगों के हाथों में दे करके और चला गया। नो, ही केम हियर एंड ही वॉज हियर टू स्टे, बिकॉज बाबर वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ एक्सपेंशंस, और वो भी अपने लिए एक सही ज़मीन की तलाश कर रहा था। सो ही वॉज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया फॉर ऑल द different future expansions. Okay, so he was here, and when he killed Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat, he laid the foundation of the Mughal Empire here. Okay, we will learn about the Mughal Empire. We have already done the videos related with the Babar, Humayun, Akbar, and we will do the revisions again in the next coming videos before your exams. Okay, now when we talk about the administration, okay, Sultanate period में, in the Sultanate administration, the Sultan was the head of the administration. जो सुल्तान जो रूलर होता था, he was the head. और द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिस लैंग्वेज में काम होता था वो हिंदी और इंग्लिश नहीं थी उस समय, इट वॉज पर्शियन. ओके, एंड द सुल्तान वॉज एडवाइज्ड ऑन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट बाय, वो जितने भी उसके नोबेल्स, जो दरबारी, जिन लोगों को वो ट्रस्ट करता था, जो उसके एक तरह के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, उन लोगों के ही बातों पे वो भरोसा करता था और वो उसे समय समय पे हर बात पर एडवाइस करते रहते थे. देन जुडिशियल, रिलीजियस, कोई भी मैटर हो उस पर उलेमास और नोबेल्स उन्हें एडवाइस करते थे. देन द सुल्तान डिराइव्ड पावर बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, अकॉर्डिंग टू विच द रूलर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ. कुछ ऐसा इन लोगों ने पूरा बना लिया था सीन, ऐसा एक क्रिएट कर दिया था माहौल कि जो रूलर है वो क्या है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत है, वो उनका एक मीडियम है जिससे कि जो भगवान और कॉमन मैन के बीच है. ओके, सो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वो भगवान को इस धरती पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी इज्जत उतनी ही होनी चाहिए और उसकी कही हुई बातें भी उसी तरह से माननी चाहिए. हम लोग क्या करते हैं आज भी, किसी चीज़ से डरो ना डरो, भगवान के नाम से तो हर कोई डरता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो. इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स ओनली अबाउट द बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस वी आर गोइंग थ्रू. हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसेस और बिलीफ जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सो इट्स अबाउट द बिलीफ. तो ये बिल्कुल लोगों को विश्वास दिला दिया गया कि जो रूलर है वो क्या है, भगवान का भेजा हुआ दूत है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है. सो जो भी वो कहेगा वो बात उसकी आपको माननी ही माननी है. ओके, सो इट वॉज लाइक दैट हाउ दे रूल्ड, एंड ही इंट्रोड्यूस द रिचुअल्स ऑफ सिजदा एंड पैबोज टू असर्ट हिज सुपीरियरिटी. जैसे कि अगर आप रूलर से मिलने गए तो आपको पूरा बो डाउन होना है, झुकना है, उन्हें सलाम करना है. किंग का जो रूलर का दर्जा है, जो उनका सिंहासन है, वो बहुत ऊंचे पोजीशन पे बनता था, बाकी लोग नीचे की तरफ बैठेंगे. तो ये सब कुछ सिर्फ ये दिखलाने के लिए कि जो राजा है वो भगवान का ही दूसरा रूप है, उनका भेजा हुआ मैसेंजर है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है. ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ द एम्पायर, इट वॉज डिवाइडेड इंटू इक्ताज, जिसको प्रोविंसेस भी हम लोग कह सकते हैं, अंडर द चार्ज ऑफ मुफ्तीज एंड वालीज. और इक्ताज जो थे उन्हें फिर से छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, लाइक द शिक्स, जो कि प्लेस्ड अंडर द शिकदार्स थे, उसे वो लोग रूल करते थे. द शिक्स वर देन सब डिवाइडेड इनटू परगनाज एंड प्लेस्ड अंडर आमील्स. फिर शिक्स को परगना में डिवाइड किया गया और परगना को की जिम्मेदारी किसकी होती थी देखने की, आमील्स की जिम्मेदारी होती थी. देन परगना कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस मिलकर के और एक परगना बनाते थे. द विलेज हेडमैन और द मुकद्दम हेडेड द विलेज, जो अभी हम लोग मुखिया या जिसे कहते हैं जो पंच होते हैं, जो मिलकर के गांव का सारा देख रेख करते हैं, काम देखते हैं. सो इट वाज लाइक दैट ओनली एट दैट टाइम. एंड द पटवारी केप्ट द लैंड रिकॉर्ड्स, जो हम लोग अभी भी अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, विलेज द बेसिक रूट, द बेसिक पॉइंट ऑफ द सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग गवर्नेंस का, द 3 टायर सिस्टम, उसमें विलेज में अभी भी हम लोग ये देखेंगे कि पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
for keeping the records related with the land and the revenue and all these things. So it was the same at that time only. देन आपको देखना है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वजीर कौन सा डिपार्टमेंट देखते थे. देन द हारिस मुमालिक, ही वॉज द डिप्यूटीज, उसे आर्मी और मिलिट्री अफेयर्स देखने होते थे. चीफ सदर होता था और द चीफ काजी, जो कि जस्टिस और चैरिटी वगैरह से रिलेटेड काम देखा करते थे. देन एग्रेरियन सिस्टम, किस तरह से ज़मीन और खेती से रिलेटेड जो वर्क थे वो कैसे देखे जाते थे. The ICTA system was the most important administrative and the agrarian measure introduced by the Turks in India. ये सबसे important agrarian measure था जो तुर्क्स ने यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था. और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे क्या हुआ कि हेरिडिटरी होता चला गया. जितने बिगर जो इक्ताज थे, जो बड़े बड़े इक्ताज थे, जो लैंड ये थे टुकड़े जो पीसेस थे, दे वर हेल्ड बाय दोज हु वर इन चार्ज ऑफ हायर डिपार्टमेंट्स. जो जितने बड़े पोजीशन पे था, जितना बड़ा ऑफिसर था, वो उतने बड़े इक्ता का मालिक था, उसे उतना बड़ा इक्ता देखना पड़ता था. और जो स्मॉल होल्डर्स थे, जो इंडिविजुअल्स थे, लाइक द सोल्जर्स विद नो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे होल्ड द स्मॉलर वंस. ओके. और इन एडिशन टू दैट द दिल्ली सुल्तान इम्पोज्ड वेरियस टैक्सेस, बहुत तरह तरह के टैक्स भी दिल्ली सल्तनत के द्वारा लगाए गए थे जो आम किसान थे उन पे. नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव और द ऑफिशियल वंस, जो आम किसान थे उन पे बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस इम्पोज किए गए थे, जैसे खरच, दैट इज नोन एज द लैंड टैक्स, घड़ी, द हाउस टैक्स एंड द शराय, द टैक्स ऑन कैटल. ओके. तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए. रेवेन्यू जो था वो बहुत हाई था पेजेंट्स पे. लाइक कई बार तो ऐसा होता था कि हाफ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जितना प्रोड्यूस किया विलेजर्स ने, किसानों ने, उसका लगभग आधा उन्हें टैक्स में दे देना पड़ता था. ओके. एंड ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी ओनली द रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ लैंड. जो लैंड का मेजरमेंट था उस पर बेस कर दिया गया था कि इसका इतना लैंड है तो उसे इतना देना होगा. देन ड्यूरिंग द गियासुद्दीन तुगलक सीजन इट वाज बेस्ड ऑन क्रॉप शेयरिंग. करप्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफन हरास्ड पीजेंट्स, जो कि हमेशा होता है. करप्शन इज सिंस द एंशिएंट टाइम, जिसके हाथ में पावर होता है वो अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट करता ही करता है. एंड देन द रेवेन्यू ऑफिसर्स वर देयर, जो चीज़ों को इधर उधर करते थे. नाउ लेट अस सी द डाउनफॉल ऑफ द सल्तनत. किस तरह से सल्तनत डिक्लाइन किया, तरह से डाउनफॉल था. बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसको अफेक्ट करते हैं. लाइक द सबसे पहली बात, जो रूलर्स थे दे वर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट. वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाए, और नहीं तो जो टेरिटरीज उनके पास थी, जो रीजन्स थे, उन्हें भी, उन एरियाज को भी वो संभाल करके नहीं रख पाए थे. ओके. द इक्ता सिस्टम हेल्प टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ द किंग. जो इक्ता सिस्टम के हिसाब से उन्होंने ऑफिसर्स अलग अलग अपॉइंट किए, उससे किंग के पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता चला गया. उनका पावर बढ़ गया और किंग जो थे वो डिपेंड करने लगे नोबेल्स पे, जो लोग काम कर रहे थे, जो रिस्पॉन्सिबल वंस थे, जो ऑफिसर्स थे. तो इससे क्या हुआ कि वो लोग ज़्यादा पावरफुल होते चले गए और रूलर्स वीक होते चले गए. और कई बार जो वीक एम्पायर्स थे दे बिकेम द टारगेट ऑफ अटैक्स. जब किसी को ये पता चलता है कि आप कमज़ोर हैं तो वो बाहरी लोग आते हैं और आप पे आक्रमण करते हैं. सो इस तरह की चीज़ें बढ़ती चली गई थी. एंड द सुल्तान्स डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिटर, दैट इज द एल्डेस्ट सन सक्सीडेड हिज फादर एज द रूलर. सक्सेसर किसी को भी बना दिया जाता था तो इससे क्या होता था, आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई. जो सबसे बड़ा है, जो बड़ा बेटा है, ही एक्सपेक्ट्स कि उसे मिलेगी सत्ता, रूलर वो होगा नेक्स्ट. लेकिन ये होता नहीं था और ये प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं था. जिसको मन उसको, जो सबसे नज़दीक है रूलर के, जो पॉसिबिलिटीज़ उन लोगों के पास होती थी, कई बार अपने बच्चे नहीं भी, द नेफ्यू, द सन इन लॉ, इन लोगों को सुल्तान बना दिया जाता था, रूलर बना दिया जाता था. तो इससे भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शंस आपस में उन लोगों के होते चले गए. एंड दिस वर द रीजंस बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द सल्तनत पीरियड. ओके. Now in the next video we will discuss about the Mughal Empire and the 5th chapter, that is the architecture. So you have to go through the chapter, read the main points there and do all the exercises. आप बार बार मैं बोल रही हूँ, आप exercises कीजिए और
मिडिल वंस को पढ़िए, चैप्टर जरूर पढ़िएगा, बिकॉज इन हिस्ट्री यू नेवर नो व्हाट इज देयर स्टोर्ड इन द क्वेश्चन पेपर. ओके, सो डोंट अज्यूम एनीथिंग कि बस यही आएगा, यहीं से आएगा, वैसा आएगा. नो, रीड एवरीथिंग. आएगा या नहीं आएगा आपको पढ़ना ही है. ओके, थैंक यू.